Namaskar. So, today we shall discuss more about the communication skill, which is very important and important part of the employability skill, जिसका कि इंडस्ट्री प्रेमिसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको हम डिफरेंट लाइफ के डिफरेंट डोमेन्स में एक्सपीरियंस करते हैं। यदि आप सोचिए कम्युनिकेशन स्किल हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, जहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए आपके लिए कि जहाँ ज़्यादा हम इसको इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। एक स्टूडेंट जब कंपटीशन एग्जाम्स में जब पार्टिसिपेट करता है और वाइल राइटिंग द रिटन टेस्ट, तब उसको कम्युनिकेशन स्किल की इंपॉर्टेंस समझ आती है। व्हेन ही अपीयर्स फॉर एन इंटरव्यू, उस समय भी उसको एक वर्बल कम्युनिकेशन स्किल का इंपॉर्टेंस समझ आता है। एक एम्प्लॉय जो इंडस्ट्री में काम करता है, व्हेन ही ट्राई टू कम्युनिकेट विथ हिज सुपीरियर्स, विथ हिज जूनियर्स, विथ अदर स्टेक होल्डर्स, तब उसको कम्युनिकेशन स्किल का इंपॉर्टेंस समझ आता है। देन ऑल ऑफ अस while going in some party or official functions anywhere, when we don't communicate, but our body language communicates many things. So non-verbal जो communication जिससे हम कहते हैं वो बड़ा important role play करता है। Then एक professional who is working in an industry जो अपने boss को एक presentation देना चाहता है और जब public speech देने के लिए जाता है, at that time also communication skills plays a very vital role, important role. And lastly, communication skill when we face a difficult situation. Suppose you are going to your office and on the way you met someone on the road with an accident, some problems happened in that area. So how you communicate that thing which has happened there to someone, to regulating organization, to police organization, या फायर वाले को बोलना है, किसी को यदि आपको बोलना है, कैसे करके आप कम्युनिकेट करेंगे? So this becomes very important thing जो हम if you practice to improve this communication skill, then students can feel much more confident while giving for interview, while writing written test. Employees while going for the presentation to his superiors, for business presentations, उसमें एक अलग confidence will come. And good communication skill also reflects the value of the organization and your own personality about yourself, because non-verbal communication भी एक बहुत important communication होता है, जहाँ हम कुछ बात नहीं करते हैं लेकिन बहुत कुछ communicate कर देते हैं. That's also very important. So you have seen that where are all the communication skills are important and इसको improve करने से क्या क्या फ़ायदा हमें हो सकता है. अब हम देखते हैं कि कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा communication skill improve करने के लिए. So I have prepared around 6 points. If you remember these 6 points, if you practice on these 6 points, then आपका gradually क्रमशः आपका communication skill will improve. As per the experience which we gathered from the industry, I am trying to narrate you those points. How these 6 different points, if you follow them, यदि आप उसको रोज उस पर प्रैक्टिस करते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, तब आपको आप देखिएगा आपका communication skill slowly improve होता है and you become a very efficient employee of an organization. First point, the most important point, we have to understand what exactly is the communication. Sometimes we think that while talking to someone in a particular language, say English language, if I am speaking, this is called communication skill. Or if I am talking in Hindi or any other language, this is called communication skill. Actually, this is not like this. Communication skill, if you go deeper slightly inside, then the way our thoughts get structured in our mind before delivery, thoughts को अच्छे से structure करना, उसे shape देना, उसको delivered करना. Language एक tool है, but language communication skill नहीं बन जाता है यदि आपने practice किया, आपने अपने thoughts को properly structure किया, फिर उसे deliver किया, उतने speed में, उतने quality में, उतने accuracy में, ये पूरा मिलके ही communication skill बनता है. So first thing is that understand the structuring of the thoughts and delivering. Second point, आप जहाँ पर काम करते हैं उस context में आप देखिए वहाँ verbal communication क्या है, non-verbal communication कौन कौन से वहाँ पर हो रहे हैं, and writing में कौन कौन से communication हो रहे हैं. इन सब communications की आप एक
लिस्ट बना लीजिए एंड कीप इट इन द माइंड दैट आई नीड टू इम्प्रूव ईच वन ऑफ देम वाइल सेंडिंग ईमेल, वाइल स्पीकिंग ऑन द फोन, या वर्बली किसी से बात करना, पब्लिक एड्रेस सिस्टम में बात करना, अनाउंसमेंट में बात करना, वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में बी देयर। सो आपको ये देखना है कि जहाँ पर आप काम करते हैं उस जगह में कौन कौन से कम्युनिकेशन स्किल्स के टेक्निक्स यूज़ हो रहे हैं। एंड वंस यू सी ईच वन ऑफ देम देन यू विल अंडरस्टैंड ओके these are the things which I need to improve for further giving a proper effective expression of your thoughts and viewpoints. Third क्या है कि the very important part of the communication skill is the listening skill. कई बार ऐसा होता है कि we call some of our subordinates and we give them some instructions कि आज आपको you have to do this work like this, you have to go and talk to Mr. X, he will say you like this and then you complete the work and come back and report me in the evening. फिर आप चले जाते हैं उनकी बात सुन के, शाम को आके जब आप फीडबैक देते हैं अपने बॉस को तब ही सेज नहीं मैंने तो आपको ऐसा नहीं कहा था, आई थॉट आई टोल्ड यू समथिंग लाइक दैट। सो ये गलती अक्सर लिसनिंग स्किल में हो जाती है जब हम बात को ठीक से सुनते नहीं है, पूरी तरीके से सुनते नहीं हैं, या बात को सुनते टाइम जो हमें डाउट आता है हम डाउट को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल, लिसनिंग स्किल में क्या होता है कि काफ़ी सारे गैप्स हो जाते हैं। आपके माइंड में होता है कि मैंने उसको कम्युनिकेट कर दिया है, या आप ये सोच लेते हैं कि सामने वाला जो बंदा है वो आपके बात को उस तरीके से समझ लेगा जैसा आप सोच रहे हैं अपने माइंड में, लेकिन आपने कम्युनिकेट नहीं किया। इट इज़ देयर इन योर माइंड बट यू थॉट he will understand your context in the same way the way you are thinking, but you have not communicated. That creates a gap. Same way the person who is listening to you, he also anticipates. Okay, इसका मतलब शायद ऐसा होगा, he anticipates. माइंड उसको फिलअप कर देता है, जितना एरिया उसको मालूम है वो ठीक है, जितना एरिया उसको नहीं पता है वहाँ पर वो अपने ओपिनियन को उसमें डाल देता है, डाल के वो चला जाता है इंस्ट्रक्शन लेके। Then by the time he completes the work, he comes back, then he finds, okay, no, I have not told like this. ये वाली चीज़ आप अपने घरों में भी होती है, जब पेरेंट्स हमारे कुछ कहते हैं, कुछ बात कहती है, मदर कुछ बात कहती है, छोटे में होता है स्कूल से एज में, आप कुछ कहते हैं कुछ है, आप कुछ और करके लाते हैं। ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। सो इन सब के पीछे जो मेन रीज़न होता है वो है लिसनिंग स्किल का है। यदि हमारी लिसनिंग करने की कैपेबिलिटी अच्छी नहीं है और यदि हमारी लिसनिंग में एक्यूरेसी नहीं है तो हम गलत चीज़ सुन लेते हैं, और जब हम गलत चीज़ सुन भी लेते हैं तो वो जो हैबिट है वो जब हम किसी और को कम्युनिकेट करते हैं तो भी हम आधा कम्युनिकेट कर देते हैं, बाकी चीज़ें हम ये एंटिसिपेट कर लेते हैं अपने माइंड में कि वो ऐसा ही सोच रहा होगा, लेकिन वो कुछ और सोच रहा होगा। सो लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बी केयरफुल वेन एवर यू आर लिसनिंग टू समवन, pay full attention to that, very important, whether at home, in office, in college, in lecturing or anywhere. You must develop this habit of good listening skill because this is very important part of the communication skill. So there are 3 steps I told you. Fourth is that public speaking. So public speaking is also very important thing, or I can say that giving a presentation on some subject, some topic. इसमें भी efficiency develop करना बहुत important होता है। So when you prepare for public speaking or presentation, then you need to understand, okay, किनसे मैं बात करने जा रहा हूँ? Who will be my target audience? How much is the time available to give the presentation? What language I will use? उसका जहाँ पर आप स्पीच देने जा रहे हैं उस ऑडिटोरियम में या कॉन्फ्रेंस हॉल में, रूम में, वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट, माइक सिस्टम, साउंड सिस्टम, पावर पॉइंट के अगर स्लाइड्स हैं उनके बारे में, सो एंटायर सेटअप के बारे में आपको एक अंडरस्टैंडिंग, एक आइडिया होना चाहिए। उसके हिसाब से आप प्रेजेंटेशन को आपको बनाना चाहिए। कितने फॉन्ट की साइज कितनी रखनी है, कितने स्पीड से मुझे डिलीवर करना है, कितना टाइम है वहाँ पर, एंड ऑल दोस थिंग। और इसके साथ साथ में पब्लिक स्पीकिंग में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि यू नीड टू हैव प्रॉपर इंट्रोडक्शन ऑफ योर टॉपिक। जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं प्रेजेंटेशन देने के समय में, उस समय आपको यू विल स्पीक समथिंग अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक, लाइक इफ यू आर गिविंग ए लेक्चर ऑन करियर डेवलपमेंट ऑफ ए यूथ, then suppose this is your topic, then before this topic you have to give a background of this topic. In the background you must cover आपका जो टॉपिक का रिलेवेंस क्या है, और इसका रिलेवेंस उस ऑडियंस के जो आपके लेक्चर को सुनने के लिए आए हैं उनके साथ में आपके इस
टॉपिक का क्या रिलेवेंस है, कनेक्टिविटी क्या है, उसको ध्यान में रख के आपको बैकग्राउंड प्रिपेयर करना है और बैकग्राउंड की तैयारी करके आपको बोलना है. Once you give background for say a couple of minutes, then you come to your topic, your introduction. Then you give your introduction. So introduction और background के बीच में जो period होता है वो bumpless होना चाहिए. Means it must be very smooth transition. Whatever you are saying in your background and whatever your introduction, your topic, there need to be a smooth transition between these two stages. बहुत समय हम बैकग्राउंड कुछ और बताते हैं, टॉपिक कुछ और रहता है और फिर हम बात कुछ और करते हैं. दैट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम. सो पब्लिक स्पीकिंग में जो कम्युनिकेशन स्किल होता है उसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है और आपकी प्रिपरेशंस हैं, इन सब चीज़ों को आपस में रिदम होना चाहिए. एंड फाइनली व्हेन यू कंप्लीट योर प्रेजेंटेशन और पब्लिक स्पीच, उस समय आपको अपने टॉपिक को कंक्लूड भी करना चाहिए कि हमने इस चीज़ से ये सीखा, करियर डेवलपमेंट ऑफ ए यूथ में ये इश्यूज़ हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, हमने ये डिस्कस किया, ऐसा किया, उस तरीके से किया, जो सजेशंस आपने बताई उसके बारे में आपने कुछ मेंशन किया. एंड देन यू विल से ओके, विद दैट आई विल कंक्लूड. सो नॉर्मली क्या होता है कि conclusion जो होता है that should be connected with your introduction part. If you don't connect your conclusion with the introduction, then the audience will not get an idea कि आपने क्या कहा, किस लिए आप आए थे वहाँ, उनको क्या कहने के लिए आप आए थे. So public speaking में, a group presentation में, this is very important. The purpose for which you are giving presentation, it should be communicated very clearly to the audience. They should feel that. So इस प्रकार से पब्लिक स्पीकिंग की बात जब भी आती है, सो यू नीड टू डिवाइड योर प्रेजेंटेशन इन मल्टीपल स्टेजेस, लाइक बैकग्राउंड, देन इंट्रोडक्शन, देन द डिलीवरी, देन द टाइम ऑफ द डिलीवरी, देन द मेन टॉपिक, जस्टिफिकेशंस एंड द कंक्लूजन्स. एंड कंक्लूजन्स, व्हाइल गिविंग कंक्लूजन्स, you must connect with the introduction and then you open for question and answer. So ये 7 stages को आप बड़े अच्छे से डिज़ाइन करना चाहिए. पहले आपको सोचना चाहिए in what way I shall talk, what I will talk, which language I will deliver, and entire this planning. So public speaking या PowerPoint presentation देना, अपने विचारों को, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को स्ट्रक्चर करके लोगों के सामने बताना, ये भी एक बहुत इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन है. इसको थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद आता है, एकदम से नहीं आता. इट टेक्स सम टाइम, बट once you understand, okay, this is the way I have to prepare, then it becomes very, very easy. So 4 steps I have told you about communication skill. First is about understanding the basic of the communication, structuring thoughts. Second, about the place where you're working, in that responsibilities, in that place, how is the verbal, non-verbal, अदर कम्युनिकेशंस का मोड क्या क्या है, किस तरीके से कम्युनिकेशन का प्रैक्टिस वहाँ यूज़ होता है, उसको समझना और उसके हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करना. थर्ड, मैंने आपको बताया लिसनिंग स्किल, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फोर्थ, द पब्लिक स्पीकिंग स्किल विच आई टोल्ड यू, हाउ यू प्लान ए प्रेजेंटेशन, हाउ यू प्लान टू गिव ऑल योर थॉट्स इन ए पब्लिक फोरम, दैट आई टोल्ड यू. देन द फिफ्थ इज द वेरी इंपॉर्टेंट जो कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट्स हैं, फ्रेमवर्क यू कैन से. इट्स कॉल्ड 5W and 1H. 5W का मतलब होता है व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, एंड H का मतलब है हाउ. जैसे आज मैं आपको आपसे बात कर रहा हूँ, एंड यू हैव टू कम्युनिकेट दिस थिंग टू योर फ्रेंड, वन ऑफ योर फ्रेंड्स. सो हाउ यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट? Today I have listened one lecture, one presentation by so and if you communicate this much, then somebody will not understand. मैंने आज ये प्रेजेंटेशन सुना, इस चीज़ को बोलने से सामने वाले बंदे को पूरी बातें समझ नहीं आएगी आपकी. सो एक कम्युनिकेशन जो है इनकम्प्लीट हुआ. बट इफ़ यू फॉलो द 5W 1H प्रिंसिपल फ्रेमवर्क, देन कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी इफेक्टिव. मीडिया के लोग, न्यूज़ मीडिया, मैगजीन, उनके लोग 5W 1H प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट वेन एवर द कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में यदि आप कोई चीज़ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो ऑलवेज बैकग्राउंड में ये ध्यान रखिएगा कि 5W 1H के प्रिंसिपल्स इसमें फॉलो हो गए हैं क्या. यू आर राइटिंग वन ईमेल दैट टुडे आई मेट वन मिस्टर शर्मा, ही वाज सेइंग लाइक दिस. So he will call you, please speak to him, and then you conclude the email.
But in that, unless you define clearly who is this Mr. Sarma, where he works, in what context he was saying, तब तक जो बंदा रिसीवर है उसको पूरी बातें समझ नहीं आएगी. तो ये कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है 5W1H. So today, if you're listening to me, the entire thing, who is talking, where you are seeing on YouTube videos or somewhere, in which channel you are seeing, what is this topic is about, and who has delivered the lecture, and how he has delivered using the social media platform. And this also can be seen here, this also can be seen in other channels and all like that. So this entire thing, if you combine, then it becomes a proper communication. This is called 5W and 1H. Any situation, anywhere you are going, anything you are seeing, any movies, functions, programs, in an office work, suppose you come back and you have to start writing about that. So your boss told you, okay, today you went for that program, so kindly make a brief note about that and bring it to me. फिर आप कैसे बनाएंगे उसे? What all you will write? Always remember this. कहाँ आप गए थे, क्या आपने देखा, किसने दिया, किस तरीके से दिया, how it was delivered. Entire thing, if you remember 5W1H in your background, then you can note down the points and give it to the boss. Then it will be clear. Otherwise हम लोग बहुत समय जब आप नई नौकरी ज्वाइन करते हैं उस समय यदि आपसे ये कहा जाता है कि रिपोर्ट बना के लाइए, सो आप उस रिपोर्ट को जब बना के लेके जाते हैं तो उसमें आधी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, क्या आप कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आधा आपके माइंड में है, आधा आपने वर्ड में किया है, और जब दो बंदा उसको पढ़ता है उस वर्ड्स को तो उसे कुछ क्लैरिटी नहीं आती कि क्या बोलना चाह रहे हैं, ये कहाँ गए थे, कितने बजे गए थे, क्या सब्जेक्ट है, क्या टॉपिक है. तो ये पूरी कम्युनिकेशन कंप्लीटली कम्युनिकेट होना चाहिए जिससे भी आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं. दिस इज़ द मेन स्किल. तो ये कुछ ऐसे नोट्स जब आप बनाना चालू करेंगे तब आपको एक आइडिया हो जाएगा. बट बैकग्राउंड में ध्यान रखिए 5W1H ये प्रिंसिपल, 5वां स्टेप जो है. एंड लास्ट स्टेप है स्ट्रेस एंड फियर मैनेजमेंट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका कम्युनिकेशन जिस तरीके से भी आप कम्युनिकेट करते हैं, सो यू नीड टू नो दैट ड्यूरिंग द स्ट्रेस एंड फियर एट दैट टाइम हाउ यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट. जब आप प्रैक्टिस कर ले, जब आपको मालूम है कि मुझे इस तरीके से बोलना है, प्रैक्टिस करते जाएंगे, एक बार कॉन्फिडेंस स्किल आ जाएगा तो अपने आप फियर खत्म हो जाता है. लेकिन अगर आप बिना प्रैक्टिस के जाएंगे तो यू विल फेस सम प्रॉब्लम्स. एवरीबॉडी फेसेस दोज प्रॉब्लम्स. एंड once you know, okay, it is difficult for me to initially, जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं या इंटरव्यू देते हैं तो इनिशियल जो पीरियड रहता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनिशियल 5 मिनट 10 मिनट्स. If you are able to communicate very effectively in those starting 5 minutes or few minutes, then slowly your confidence builds up. It's a very typical thing which happens with most of us. So if you prepare your initial questions, how to answer that during the interview, they will ask very simple things. What's your name, from where, which background, what about your experience, थोड़ा बताइए अपने बारे में. So interviewer will try to encourage you to speak. But if you are having the problem of the fear and stress, then you will feel hesitation to speak out something. लेकिन आपको वहाँ ये समझना है कि दे आर वेटिंग फॉर यू टू स्पीक आउट समथिंग, तभी तो उन लोग समझेंगे आपको. हाउ मच यू नो, व्हाट एग्जैक्टली यू नो, द डोमेन इन विच दे आर इंटरेस्टेड, डू यू हैव नॉलेज, डू यू हैव इंफॉर्मेशन, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में एस्टिमेशन. ऑल दिस थिंग विल हैपन ओनली व्हेन यू कम्युनिकेट. सो दिस कम्युनिकेशन नीड टू बी विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी स्ट्रेस, बड़े सिंपल नॉर्मल तरीके से. So you have to build up that confidence. So once you practice, once you understand, then you know, okay, ठीक है, I will manage this. This is the strategy I will follow. हर एक का अपना strength and weak points होते हैं. SWOT analysis, which I told you in many of my lectures. So we need to keep that thing also in mind, and then based on that you address the communication skill improvement. Written test में if you get stressed, you are not able to write. Public speaking में when you are going, you are feeling काफ़ी डर लगता है. You anticipate, okay, whatever I am going to speak,
something faulty I am going to speak, something wrong I am going to speak, and everybody is going to laugh, something like that comes to your mind. So उससे क्या होता है कि आपने अभी तक अपनी स्पीच स्टार्ट भी नहीं की है, लेकिन माइंड आपको पूरा फीडबैक दे देता है, एंड यू गेट फियर. दिस हैपेंस विथ मेनी ऑफ अस. इनिशियल स्टेजेस में ऐसी चीज़ें होती है, बट वंस यू प्रैक्टिस दिस देन दिस गेट्स ओवर. एक दो बार आपके करने के बाद फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, और ये सब माइंड का गेम होता है, उसी कारण ही प्रॉब्लम्स आती है. सो कम्युनिकेशन स्किल इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. Communication skill is also linked with the way your mind thinks. So mind control techniques, peacefulness, those things need to be maintained while properly communicating. Otherwise, if you get into a stressful mode, then you may not be able to communicate everything. उसके कारण ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉब्लम होता है, आपको भी प्रॉब्लम होता है. इवन इन हैंडलिंग इमरजेंसीज सिचुएशंस, वी नीड टू वेरी calm and cool and communicate. That is very important. So I think these 6 steps what I defined to you, and the importance of the communication skill, whether you are studying or you are working or you are preparing, is extremely important. And ये communication skill आगे चल के जब आप जॉब करते हैं तो बहुत important employability skill हो जाता है. So try to work on these lines and improve upon them. Thank you. नमस्कार.